जी मैम। ओके, स्टार्ट करें। जी। ठीक हो गया। ओके, मैं टाइमर आपका स्टार्ट कर देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं, सही है। जी। 3 स्टेशन आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपका टाइम हो गया है स्टार्ट। Okay, I have been provided with a chest X-ray frontal projection of a skeletally mature female patient, in which I can appreciate bilateral lungs appears normal and diaphragmatic counter appears normal. Trachea is centrally placed. There is a straightening of the right heart border is noted, and there is a horizontal orientation of the ribs is noted. However, there is no any definitive consolidation is seen. Both breast shadows appears normal. Stomach bubble is normal, visualized at its position. Based upon these findings, it is likely the case of a pectus excavatum. And next, I will do CT HRCT of this patient or CT scan chest to confirm the Hyler index of this patient and will confirm my findings. डॉक्टर साहब, पेक्टिस एक्सकोवेटम हम किसके डिफरेंशियल में रखते हैं? Ma'am, it can be a right middle lobe collapse. आपको राइट साइड पे कोई कोलैप्स नजर आ रहा है? No, ma'am, as such इसमें नजर नहीं आ रहा. एज सच इसमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसका ये डिफरेंशियल नहीं है ना। जी. तो पेक्टिस एक्सकोवेटम और राइट मिडल लोब कोलैप्स तो आपका निकल गया। अब दोबारा से थोड़ा सा दूर करके मोबाइल या टैब को देखें और फिर बताएं। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा किया आपने जी. अटेम्प्ट। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया ना कि इन दोनों डीडीज को हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि कहाँ पे मसला है, दोनों साइड्स को कंपेयर करें, देखें। Ma'am, there is a straightening of the left heart border is also noted, and there is a mild obscuration of the left hemidiaphragm is seen. Uh, And I can also appreciate there is a tubular shaped radio opacity is noted along the right side of the uh, hard border. हम्म। Uh, सो it is giving a Turkish sword appearance. It can be a case of uh, डॉक्टर साहब, आपके 3 मिनट पूरे होने वाले हैं स्टेशन के, और मैं it can चाहती be हूँ a कि आप case of a सॉरी करें। Scimitar syndrome. नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलें कंपेयर करें दोनों लंग्स के वॉल्यूम्स। Ma'am, left side volume is decreased as compared to the right side of volume. ठीक है, तो फिर क्या बनेगा? Ma'am, it can be a case of a left level of collapse as there is a obscuration of the left hemidiaphragm is seen. लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स का साइंस And बताएं जल्दी। ma'am, there is a crowding of the ribs is seen, and there is also a mild displacement of the trachea towards the left side is seen, and there is also mild elevation of the left hemidiaphragm is seen. It is likely the case of a left level of collapse. Next, I will do a bronchoscopy of this patient, and I will also like to see the contrast enhanced CT scan of chest to exclude any mass. And I will refer the patient to the in the surgical department for its biopsy. ठीक है, मैं इसके अलावा और क्या कॉज हो सकती है? Ma'am, any underlying infection or TB can be also be ठीक है, cause of collapse. आपका नेक्स्ट केस। Okay, I have been provided with a chest X-ray frontal projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate that stomach bubble is seen on the right side of the patient, and there is also a there is a right side apex of the heart is seen, and there is
Bilateral lungs appears normal, visualized bones appears normal, and there is a soft tissue density shadows are seen with which are involving the mediastinum. Uh, डॉक्टर साहब इसके ऊपर तो एरोज भी लगे हुए हैं। अब मुझे एरोज रिमूव नहीं करना आते थे, लेकिन बताएं इसमें क्या है। Ma'am, it is likely the case of a mediastinal mass as Hylam's Overlay sign is also seen to be positive. व्हाट इज हाइलम ओवरले साइन? मैम लेफ्ट साइड पे लग रही है। व्हाट इज हाइलम ओवरले साइन? Ma'am, I can appreciate the vessels and bronchi through this mass. So it is गुड। likely so it is a hilum, and it is this lesion is also making the obtuse angle with the mediastinum. So yeah, most likely it is a anterior mediastinal mass. However, I would like to see the lateral chest X-ray of this patient, and I will do contrast and CT scan of this patient to confirm my findings. कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन आपने मांगा है, ठीक है, ये ले। Okay, I have been provided with a contrast enhanced scan of chest axial slice, in which I can appreciate there is a large homogeneous soft tissue density mass is noted, which is involving the anterior mediastinum, and it is abutting the anterior chest wall anteriorly, and it is posteriorly it is abutting the vessels. However, there is no any definitive ठीक है, अभी invasion आप within मुझे the बताइए क्या vessels. है। Ma'am, it is likely the case of thymoma, or my differential diagnosis also include teratoma. However, I cannot see any calcification within it. It is most likely it is thymoma, and my other differential. हो सकता है, इसके अलावा और क्या डिफरेंशियल हो सकता है? Ma'am, it can be also a case of thymic cyst, and हाँ। or thyroid gland, enlarged thyroid. नो नो नो, इससे मिलता जुलता इंटीरियर मीडियास्टिनम में इतना होमोजेनस स्मूथ मैस क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? Ma'am, it can also be lymphoma. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट केस जी. आपका लास्ट। Okay. I have been provided with a chest X-ray frontal projection of a skeletally mature patient, in which I can अभी appreciate चैट में किसी ने भी नहीं लिखी। heterogeneous सॉरी सॉरी, आप बोले। there is a heterogeneous nodular radio opacity are noted, which are involving the right side of the chest, and it is seemed to be arising from the pleura, and right CP angle is also obscured, and there is also a mild mediastinal shift towards the right side, and trachea is mildly pulled towards the right side. However, left chest appears normal, and the left CP angle is acute. Yeah, visualized bones appears normal. So based upon this finding, I am thinking in the line of the any infective etiology. Next, I would like to see the HRCT of this patient to confirm my findings and to see the डॉक्टर साहब any सीटी मेरे, आप दोबारा से देखो इस चेस्ट एक्सरे को। आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप दोबारा से देखो इस चेस्ट एक्सरे को। ma'am, इन्फेक्शन नहीं it can be any pleural based mass, or or it is a peripheral based opacities. So it can be a case of infective etiology, likely chronic organizing pneumonia. है। और मैंने आपको बोला है बेटे, इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं है, एग्जामिनर की बात सुननी होती है। ओके मैम. आपने बोला प्लूरल बेस्ड मैथ्स है, तो प्लूरल बेस्ड मैथ्स के क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं? जी मैम. मैम, it can be a case of a pleural TB, or it can be ठीक है डॉक्टर साहब, आपका टाइम खत्म हो pleural गया। METs or हाउ pleural मच? अभी fibroma. कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेशन पे चली जाएं। ओके। जी. कैंडिडेट 5 है। कैंडिडेट 5।
कैंडिडेट 6। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडिडेट 5 नहीं है ना? आप 6 हो? यस मैम, आई एम 6। ठीक होगा, चलो अगर कैंडिडेट 5 आ जाते हैं तो उसके बाद कर लेंगे, अभी आपसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? यस मैम। मैं टाइमर लगा लूँ 1 मिनट, फिर मैं आपसे करती हूँ। अच्छा, आप लोग ना मैसेजेस अभी ना करो, जब ये सारा वाइवा हो जाएगा ना फिर मैसेजेस करना। इस तरह जो बोल रहा होता है ना वो बेचारा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा जी, आपका हो गया है टाइमर स्टार्ट और आपका केस है ये। I am provided with a X-ray chest frontal projection of adult skeleton, mature skeleton patient in which I can appreciate it. Well-defined soft tissue opacity is appreciated in the uh, right mid zone. Uh, right mid zone. However, the heart sizes appears unremarkable. Both CP angles are acute. Left hemithorax is unremarkable, and trachea is centrally placed. Visualized bones unremarkable, and mild apical thickening is noted bilaterally. So, समराइज करें। mm, soft tissue opacity. चुप नहीं करना, वाइवा में बोलते रहना है। Ma'am, it could be. I want to, ma'am, next see the CCT chest. क्या Soft tissue. देखने के लिए? मैम मैथ देखना, ये सॉफ्ट टिश्यू पेस्टी मैथ आ रहा है लेटरली एट द मिड जोन स्लाइटली सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है। ओके, इसके क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं? मैम ग्रेनुलोमा हो सकता है हम्म, और वेरी गुड। एवीएम हो और सकता है, गुड, और हेमाटोमा हो सकता है। गुड, और ठीक है, हमारे पास सीटी स्कैन है, ये देखना। I am provided with the HRCT chest axial image lung window in which I can appreciate it. There is a well-defined pulmonary nodule is appreciated along with vessels are seen arising from this, and uh, and the rest, हाँ, बहुत ma'am, अच्छा, करो आगे। and ma'am most likely ma'am AVM लग रहा है किस वेरी गुड। अब देखो केस आसान है ना, अगर अच्छे नंबर लेने हैं इसमें तो आगे खुद से बताओ क्या क्या कराएंगे। ठीक है, एक एवीएम मिल गया, आगे। arterial venous malformation। मैम नेक्स्ट इसका सिटी कराएंगे एंजियोग्राफी। अच्छा, फिर क्या होगा? अच्छा, कोई सिंड्रोम होता है, कोई इस तरह की डिजीज होती है जिसमें ये मल्टीपल होते हो? मैम ये स्कीमेटार तो नहीं, साथ में नीचे क्या है आ रहा है नहीं नहीं ना, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हो, क्यों एग्जामिनर को नाराज कर रही हो? देखो बिल्कुल सही आप बता रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ, मल्टीपल एवीएम्स किसी डिजीज में होते हैं? चलो मैम अभी कोई बात, याद नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट केस करते हैं। I am provided with X-ray chest frontal projection of mature patient, which is seen into the ICU setup, uh, in which I can see multiple leads are there. There are fluffy, patchy opacities are noted in the bilateral lung fields, predominantly at the perihilar location. CTR is within normal range, and आपका uh, नंबर है? sorry, ma'am. Both CP angles are acute. Trachea is centrally placed. So, हम्म, so my topmost diagnosis will be non-cardiogenic pulmonary edema and गुड। pulmonary pneumocystoconiosis, PCP.
ओके, And सिक पेशेंट खुद बोला next है। I will correlate with the history. हिस्ट्री, आईसीयू में एडमिट है पेशेंट। और मैम पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, पल्मोनरी नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ARDS। इस केस में क्या है, इतनी सारी उसको जो है वो ट्यूबिंग से हुई है, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, सीवीपी पास की हुई है, पल्मोनरी क्या है, हेमरेज, ARDS मैम, ARDS क्या करेंगे? ARDS नेक्स्ट मैम, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन प्रेशर की वजह। नहीं करेंगे क्या, मैंने वजह तो पूछी नहीं ना। मैम आप इतना अच्छा बता रहे हो, बोलो शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। कुछ भी नहीं करेंगे, आईसीयू वालों को बताएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप लोग मैनेज करें ना, आपका पेशेंट है। ठीक है, अब ऐसा करो, केस नंबर 6 बताओ। X-ray chest, frontal projection of mature skeleton in which ECG leads ये भी है। जी जी, बोलो। मैम हाँ, मैं देख रही हूँ कि मैम CTR within normal range है, both CP angles acute है, trachea slightly shifted towards the left side है, mediastinum shifted towards left side है, right paratracheal widening slightly आ रही है, और हाँ हाँ, जो आपको नॉर्मल चीजें लग रही हैं वो बोलते जाओ ना। नॉचिंग तो नहीं, अरे मैम स्लाइट रिब नॉचिंग तो नहीं आ रही। हम्म। थर्ड फोर्थ पे थोड़ी सी मुझे रिब नॉचिंग लग रही है मैम। गुड। फिर? फिगर ऑफ थ्रीस एंड कोऑक्टेशन ऑफ एयोटा। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिर कोऑक्टेशन ऑफ फ्लूइड है तो नेक्स्ट क्या करेंगे? इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, उसमें क्या पता चलेगा? सिटी एयोटोग्राफी। हाँ, सीटी एंजियोग्राफी करवा लेंगे ना। ठीक हो। अच्छा, कोऑक्टेशन और स्यूडो कोऑक्टेशन का क्या डिफरेंस होता है? मैम जो उसमें ना ट्रू होगा, जो ट्रू में होगा उसमें जो है ना स्मॉल होगा, उसमें जो सीडो में होगा उसमें पूरा वो नहीं होगा जो। और भी आसान डिफरेंस जो सबको याद भी रहे। हम्म, क्या क्या एसोसिएशंस होती हैं कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की, किन किन पेशेंट्स में मिल सकता है? टर्नर में मैम और हाइपरटेंशन। इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी? वल्वुलर हार्ट डिजीज मैम। हम्म ठीक है, आपका टाइम हो गया खत्म। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट कैंडिडेट का करते हैं, ठीक है। ओके मैम। कैंडिडेट 5 आए हैं कि नहीं आए? कैंडिडेट 5 को हम दोबारा नहीं बुलाएंगे। कैंडिडेट 7 ने तो कल मेरे ख्याल में वाइवा दे दिया था, राइट?
मैंने लिखा था एक जगह पे, वो पेपर गुम गया। कैंडिडेट 7 ने अगर दे दिया था, कैंडिडेट 8 है, 8, 9, 10 कोई भी है तो आ जाए प्लीज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। 9 हाँ, स्टैंडर्ड। कैंडिडेट 9, ठीक है। 5 जो है वो नहीं आए और कैंडिडेट 9 हो गए, ठीक है। कल 7 ने दिया था ना, आप लोगों को याद है? कैंडिडेट 7 ने आई थिंक दिया था, ठीक जी है। मैम, मैंने दिया था। बस ठीक हो गया, ठीक है। ओके, कैंडिडेट 9 जो है आपका केस ये है, और टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। Madam, this is an X-ray chest frontal projection of skeletal mature patient. In these given images, I can see there is an heart size, cardiac shadow is enlarged. It has a globular shape, and however, visualized bilateral lung parenchyma normal. Bilateral CP angles are acute. And in this given image, I can appreciate there is an also enlarged cardiac shadow causing the widening of carina. And I can see there is an also double density sign is appreciated. So no mediastinal shift is seen. My likely diagnosis, it could be a case of the mitral stenosis. पल्मोनरी हाइपरटेंशन नजर आ रही है आपको उसमें? पल्मोनरी वेसल्स कैसी हैं? Madam, पल्मोनरी वेसल्स जो हैं वो एनलार्ज्ड हैं कि नहीं? madam, in this given images, मैडम हाइला नॉर्मल लग रहे हैं। नॉर्मल लग रहे हैं ना, इसका मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं है। तो माइट्रल स्टेनोसिस होगी उसमें मोस्टली जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी होती है साथ, ठीक है। तो जी मैडम। अब नॉर्मल अगर जैसे आपने स्टार्ट किया ग्लोबुलर शेप हार्ट है, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे, क्या डिफरेंशियल्स होंगे? So, madam, the differential it could be the some congenital heart disease. बस जब एक बड़ा सा हार्ट नजर आ रहा है सबसे पहले जेन में क्या आता मैम एक एब्सटीन एनोमली। है? नहीं नहीं, वो तो बॉक्स शेप अच्छा हार्ट है ना, उसमें तो अच्छा बॉक्स मैम जी, फिर पेरिकार्डियल एफ्यूजन लाइकली। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हो सकती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन की? पेरिकार्डियल एफ्यूजन मैडम इसमें एक तो कोई इन्फेक्टिव etiology हो सकती है, ट्यूबरकुलस, और हम्म। गुड। ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकती है, और हम्म। इसमें मैडम हार्ट फेलियर के पेशेंट में हो सकती है, और इसमें सम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करवाना चाहते हैं? नेक्स्ट इसमें मैडम हम कंट्रास्ट इंटेंसिटी टेस्ट करवाएंगे एंड एकोकार्डियोग्राफी कोरिलेशन। ठीक है, मेरे पास है इनका कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन चेस्ट। मैडम these are contrast and CT images, axial and the coronal reconstruction images, mediastinal window। इसमें कंफर्म हो गया आपको क्या है? जी मैडम, पेरिकार्डियल फ्यूजन। पेरिकार्डियल, ठीक है। वजह नजर आ रही है इन इमेजेस में कोई? कि इसकी मैंने वजह राइट से साइड पे, पेरिकार्डियल। राइट साइड पे ये स्मॉल कैविटेटिंग मैस आ रहा है, सॉफ्ट टिश्यू। वेरी गुड। तो तो अगर मैंने कैविटेटिंग मैस आ रहा है ये, मिलिक कोई मैस हो सकता है मिलिग्नेंसी की वजह से। बिल्कुल ठीक है, मेलिग्नेंसी की हम्म, वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकती है ना। जी ठीक है, तो ये आपने खुद सब कुछ बोलना था, और फिर आपने ठीक है स्टेजिंग भी इसकी खुद ही से बतानी थी, ठीक है। ठीक है मैडम। बताए ना? मैडम स्टेजिंग इसकी सीए लंग की नाम, ठीक है। मैम पेरिकार्डियल फ्यूजन आ गई तो इसको हम ये फिर
पेरिकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट हो गई है T3 T3 में आपने डाल दिया। नेक्स्ट केस T3 में देखें। से these are CT chest axial and the coronal reconstruction images. In these given images, I can appreciate there is a small nodular opacities which are appreciated. Small nodules which are appreciated involving the bilateral lung parenchyma predominantly involving the mid and lower below zone. Some of the nodules forming the coalescence to form the coalescence forming the opacities which are noted in the पैटर्न के ऊपर फोकस करें। पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पे नोड्यूल्स? and these nodules are एक तो along the bronchovascular markings वेरी गुड। and these are की distribution है bronchovascular and the bronchovascular markings and perilymphatic distribution. क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, इस तो पैटर्न के? इसमें में सार्कोइडोसिस एंड इसमें हम डालते हैं कोलवर्कर निमोकोनियोसिस एंड इसमें हम में नोडुलर डिजीज सार्कोइडोसिस कोलवर्कर निमोकोनियोसिस और इसमें मैडम हम डालते हैं सिलिकोसिस। वही हो गया ना कोलवर्कर जी। और पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस ठीक हो एंड गया। अब इसमें क्या है, लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी नहीं है। मैडम फिर ये मैं ये मोस्ट लाइकली लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस है। ठीक We will further ask the history of the patient about primary malignancy. ये सब आपने खुद बोला था ना, ठीक है। जी नेक्स्ट मैडम केस। ठीक है। अच्छा and this is an X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. In these given images, I can appreciate इसमें visualize there is I can appreciate there is some calcification which is noted along in the left along the left cardiac border. And bilateral hyla is also slightly bulky. However, cardiac size normal है, bilateral CP angles are acute non-mediastinal shift and visualized lung parenchyma normal है madam. There is some calcification along the left cardiac border, so it could be the case of the pericarditis. Causes of pericardial calcification. ठीक है, pericardial calcification में pericarditis, the most common tuberculous pericarditis. Which one? मैडम tuberculous. कौन सी? ओके, और क्या कॉजेज हो सकती हैं? And pericardial calcification में मैडम सब कोई चलो इस there केस is में an क्या कॉज लग रही है? तो इस केस में ना कॉज भी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो आपको इस केस में क्या कॉज लग रही है? इस कॉज में मैंने इसमें बायलेटरल हाइला बल्कि लग रहे हैं। नहीं नहीं, उनको छोड़ो। ठीक है, ठीक है, टाइमर बंद हो गया है, आपका टाइम हो गया पूरा। थैंक यू सो मच कैंडिडेट 9। अब हम जो है वो वापस चलते हैं, ठीक है। ठीक है।
पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने बोला है और वाइवा दिया है, उन सबके लिए जो है ना वो तालियां होनी चाहिए और उन सबको जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ऐसे 50-55 लोगों में आके बोलना, ठीक है, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। हर कोई नहीं बोल सकता, और जो नहीं बोलते वो फिर बाद में यही कहते हैं कि यार काश हम उस टाइम बोल लेते। बिकॉज जब आप जिस केस पे बोलते हो वो केस आपको फिर भूलता नहीं है। केस 1 जो है, तो आप सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी नाइस। गलतियां सबसे ही होती हैं पर गलतियों से ही सीखते हैं। केस 1 का डायग्नोसिस बताएं जी चैट में, जल्दी से। जी, ठीक है, तो ये लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स था। कैंडिडेट 4, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन आप जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो जब थोड़ा सा एग्जामिनर खुद ही कह देना कि दोबारा से फिल्म को देखो, तो वाकई थोड़ा सा दूर होके ना आपने फिल्म को देखना है तो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसमें ऑब्वियस वॉल्यूम लॉस है लेफ्ट साइड पे, ट्रायंगुलर रेट्रोकार्डियक डेंसिटी आ रही है, ठीक है, वो जो सारे इनडायरेक्ट साइंस होते हैं कोलैप्स के वो पूरे हो रहे हैं। और कोलैप्स को हमेशा हम ऐसे शुरू करेंगे, देयर इज लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम नोटेड ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर वो जिस तरह से कहीं ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं उसको प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें। और फिर क्या ही कॉजेज है, दो ही हो सकती है ना, या तो कोई न्यूप्लास्टिक एटियोलॉजी है या इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट सीईसीटी करवा लेंगे। ठीक हो गया, तो ये अच्छा हो गया लेफ्ट लोब कोलैप्स। नेक्स्ट जो है वो कैंडिडेट 4, ठीक है। पहले आप लोग बताएं चैट में आंसर्स। ठीक है, इंटीरियर मीडियास्टिनल मैस लीजन है ना, आप लोगों ने बताया बिल्कुल ऐसे ही। और आप उन्होंने कैंडिडेट 4 ने बहुत अच्छा बताया था, हाइलम ओवरले साइन, ठीक है, कि हाइलर वेसल्स नजर आ रही हैं, तो ये हाइलर मैस तो नहीं है, तो इंटीरियर है या पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के। फिर जब सीटी देखा तो उसमें वाकई ये तो इंटीरियर पड़ा हुआ था। अच्छा, उन्होंने पहले मिस्टेक ये की, उन्होंने कहा कि जी मुझे स्टमक पर राइट साइड पे नजर आ रहा है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्कर लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है जहाँ पे स्टमक है, तो एक्चुअली फिल्म उल्टी लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें समटाइम्स होती होती हैं, तो वो आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ, और बड़े कॉन्फिडेंस से एक दफा सीट पे थोड़ा सा पीछे होकर बताना है और सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो इंटीरियर मीडियास्टिनल के वही जो हमारे 3 Ts 4 Ts होते हैं वो दिखेंगे, लेकिन इतना स्मूथ, इतना होमोजेनस, कंट्रास्ट एनहांसिंग, तो दो ही चीजें बचती है ना, थाइमोमा हो गया और दूसरा लिम्फोमा। और थाइमोमा भी ये कि देखो वेसल्स को इंक्रीज किया हुआ है लेकिन वो इन्वेड नहीं कर रहा, सही है, उसने ब्रोंकस को जो है वो बहुत ज्यादा नैरो नहीं किया, ठीक है, तो ये इसलिए लिम्फोमा था। गुड। नेक्स्ट कैंडिडेट 4, आप लोग आंसर्स बताएं। कैंडिडेट 4 अच्छा बड़ा बता रही थी, पता नहीं वो कंफ्यूज हो गई शायद, फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो गई, लेकिन फिर थोड़ी सी वापस आई, बट तब तक टाइम खत्म हो गया था। तो इस सेशन का एक फायदा ये भी है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीखें। malignant mesothelioma mesothelioma mesothelioma, जी हाँ, ठीक है। तो जब हॉट सीट पे होते हैं तो फिर नजर नहीं आता, लेकिन जब हॉट सीट पे नहीं होते तो सब चीजें नजर आती हैं, जैसे बाकी कैंडिडेट जो मैसेजेस कर रहे हैं उनको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये malignant mesothelioma का ही केस है। आप देखो ना, जो इसका मीडियास्टिनल है प्लूरा, उसकी भी थिकनिंग है कितनी प्यारी, जो आपको राइट पैराट्रिकल स्ट्राइप वाली जगह पे नजर आ रही है, ठीक है। सर्कमफेरेंशियल थिकनिंग है, नोड्यूलर है, लोबुलेटेड है, तो हम डिफरेंशियल्स में सबसे पहले malignant mesothelioma रखेंगे और फिर प्लूरल बेस्ड मैसेज रख देंगे। ठीक हो गया, जो बाकी ऑब्वियसली बिनाइन वाले कम लग रहे हैं, प्लूरल मेट्स रखेंगे, ठीक है। इन्फेक्टिव एटियोलॉजी एग्जामिनर ने बोल दिया कि इन्फेक्शन नहीं है तो बस नहीं है ना, फिर आप वहां से हट जाओ, दूसरी बात करो, ठीक है। केस नंबर 4 क्या है जी? ये तो अच्छा था ना, ये तो सीटी पे कंफर्म हो गया था कि क्या है ये। और जब टेस्ट एक्सरे पे लगा तो हमने सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल SPN के डिफरेंशियल्स देने हैं, ठीक है। और इसमें समटाइम्स वो आपसे फ्रेशनर गाइडलाइंस भी पूछ लेते हैं, तो वो सबको अच्छे से रटी होनी चाहिए। और SPN के कम से कम आपने 5 या 6 DD तो फर करके उसको सुना देने हैं, ठीक है। फिर वो आपको दिखाएगा आगे इसी तरह से मल्टीपल जो है AVMs कैंडिडेट 6 थी ना, हाँ 6 या, उन्होंने मल्टीपल नहीं बताया, तो मल्टीपल जो होते हैं वो ऑसलर वेबर रेगो सिंड्रोम में होते हैं, ठीक है।
जब आसान केस आए इस तरह का कि पकड़ा जाए तो फिर जो एग्जामिनर है वो आपसे वाइवा क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके लिए आपने यही बताना है कि मैं सीटी एंजियो करवाऊंगा ब्रेन की, और उसमें देखूंगा कि उसके अंदर और एवीएम्स वगैरह तो नहीं है, लिवर देख लूंगा उसमें और एवीएम्स तो नहीं है। फिर इसका एक क्राइटेरिया होता है ना, उसमें एपिस्टेक्सिस होती है और कलेंजियक्टेजियाज होते हैं और ये एवीएम्स होते हैं। तो वो आपने मतलब उसको बताना है कि हाँ भैया मैं घर तक छोड़ के आऊंगा ऑस्लर वेबर एंडो सिंड्रोम को। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट ने ये कहा था कि दिस इज HRCT इमेज। नहीं, अब देखो जब एक नोडुल इतना एनहांस चमकता हुआ नजर आ रहा है तो हमें पता चल गया कि यार ये कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन था। ऑब्वियसली हमारे पास मीडियास्टल विंडो नहीं है, बट फिर भी हमें HRCT कहने से बेहतर ये है कि बस हम फिर सीटी स्कैन टेस्ट करें। ठीक है। केस नंबर 5 क्या था? ARDS। ठीक है, ये उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा बता दिया था कि सिक पेशेंट है, सिक पेशेंट है तो हमने उसमें ARDS ही कहना है। देखिए ना, सिक पेशेंट तो कैसे पता चला? अभी मैंने तो कह दिया था कि हाँ जी हिस्ट्री है उसकी, वो ICU में एडमिट है, पर एग्जामिनर ऐसे नहीं कहेंगे। आज मैं लीनियंट एग्जामिनर बनी हुई थी तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई। तो ट्यूबिंग्स वगैरह, इतनी एक्सटेंसिव ट्यूबिंग्स देख के आपने जो है वो खुद ही से गेस कर लेना है कि ये ICU पेशेंट है। अच्छा, फिर ट्यूबिंग्स भी आपने बतानी है कि ETT आपको इसमें नजर आ रही है, राइट, वो नॉर्मली प्लेस्ड है। फिर जो है वो CVP लाइन पास हुई हुई है इनको, ठीक है। बाकी ये ECG लीड्स लगी हुई हैं, सही। तो ये आपने बातें खुद ही बतानी है और फिर खुद ही से बताना है कि ये सब कुछ देख के मुझे लग रहा है कि पेशेंट इज एडमिटेड इन ICU, सो माय मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज ARDS। गुड। नेक्स्ट बताइए ये क्या है? जब कोई फिल्म नॉर्मल लगे और उसमें कोई मसला नजर ना आए तो फिर क्या सोचना है? सबसे पहले कोऑक्टेशन और दूसरे नंबर पे सिमिटार। ठीक है, तो वो कैंडिडेट 6 को ये बात पता थी इसलिए उन्होंने ये दोनों बातें बोली। ठीक है, लेकिन फिर आगे आगे जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर फंस गई। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब इस तरह का होगा, आसान केस आएगा, फौरन पकड़ा जाएगा, तो फिर हमने उसके क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चंस रेडी करने हैं। जो जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो पता होने चाहिए। कोऑक्टेशन वर्सेस स्यूडो कोऑक्टेशन, और एसोसिएशंस क्या क्या है कोऑक्टेशन की। मार्फन सिंड्रोम होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, टर्नर सिंड्रोम उन्होंने ठीक बताया था। इसके अलावा भी काफी सारी वो रेडियोपीडिया से देख लीजिएगा। और कोऑक्टेशन और स्यूडो कोऑक्टेशन का डिफरेंस ये है मेन कि उसमें एक तो कोलेटरल नहीं बने होंगे। जब कोलेटरल्स नहीं बनेंगे स्यूडो कोऑक्टेशन में तो रिब नॉचिंग नहीं आएगी। तो सिंपल से अल्फाज में ये बात याद रखें कि स्यूडो कोऑक्टेशन में रिब नॉचिंग नहीं होगी। ठीक है, फिगर ऑफ फ्री साइन हमें मिल जाएगा लेकिन रिब नॉचिंग नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट केस जो था वो कैंडिडेट 9 ने अटेम्प्ट किया था ना जी। पहले उन्होंने माइटोसिनोसिस बनाया, मैं होती तो शायद मैं भी वही बनाती, लेकिन फिर मैंने उनको खुद उसी टाइम पे करेक्ट कर दिया था। ठीक है, कि भाई पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हमें नजर नहीं आ रही ना, तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। फिर हमने CT पे देखा, कंफर्म हो गया। अब देखें एक्सरे पे तो हमने बता दिया पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन जब हम CT पे गए तो वो फिर हमसे खुद कहेगा कि ठीक है खुद से देख के बताओ कि किस वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, एक मैस नजर आया था जो कैविटेटरी था, ऑब्वियसली हम उसको मेलिग्नेंट में डालेंगे। मेलिग्नेंट में डाले तो उसने पेरिकार्डियल इफ्यूजन करवाई है, तो फिर स्टेजिंग भी ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस का यही फायदा है कि हम इतना ज्यादा इमेजेस देखें, इतना ज्यादा बोलें कि वहां जाके हमें सोचना ना पड़े। वहां जाके बस हम जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, पर गाड़ी तो चल रही होती है खुद ब खुद। तो वाइवा भी ऐसी चीज है। तो फिर T3 हो गया बिकॉज पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हो गई, तो ये T3 हमने इसको लेबल कर दिया। गुड कैंडिडेट 6, आपने 9 सॉरी, आपने इसको अच्छा बताया था। केस नंबर 8 क्या है? काफी सारों के आंसर्स तो मैंने बता दिए थे बीच में। ठीक है, तो HRCT जब भी लगेगा आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। ठीक हो गया कि अगर तो मतलब हमें पता है कि TB जो है उसमें सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स आते हैं, फिर उसमें ट्रीन बड आता है, वो नहीं है ना, TB निकल गया। ठीक है, ब्रोंकोवेस्कुलर बंडल्स अगर उनके अलोंग नोड्यूल्स आ रही हैं, सेप्टल थिकनिंग आ रही है, तो हमारे वो भी 3 DDs रहेंगे, सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस, लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमाटोसिस। फ्यूजन जो है वो मोस्टली नहीं होती ना सार्कोइडोसिस और न्यूमोकोनियोसिस में, सिलिकोसिस वगैरह में। ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली हम हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे। तो इसको हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं
कि if there is history of any occupational history, so this could be due to silicosis. If there is any history of night sweats or fever or weight loss or increased ACE levels and calcium, तो फिर जो है वो हम सार्कोइडोसिस की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कोई मेलिग्नेंट कोई न्यूप्लास्टिक हिस्ट्री है तो फिर हम उसको लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस की तरफ कर देंगे। तो इफ करके हमने खुद ही बताना है और फिर खुद ही हमने अपनी चीजों को रूल आउट करते जाना है। ठीक है, कैपोसी इसलिए नहीं बिकॉज उसमें पेरी हाइलर आती हैं, ठीक है ना, मतलब हाइलम के अलॉन्ग बहुत ज्यादा होंगे और इतनी नीचे करके नहीं होंगी। जैसे जो आपको कॉर्नल विंडो दिखाई गई ना, उसका पैटर्न ये नहीं है, उसमें इतनी प्यारी सेप्टल थिकनिंग नहीं आएगी, उसमें इतना प्यारा ब्रोंकोवेस्कुलर बंडल इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसमें अगर वो आपको देगा तो वो दिखाएगा करेक्टरिस्टिक फ्लेम शेप आपको दिखा देगा, ओपेसिटीज इन द पेरी हाइलर रीजन और इस तरह से करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, पैटर्न रिकग्निशन जो है वो HRCT में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप रटा लगा लें या इमेजेस बार 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 देख के कर ले तो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए ब्रिगेडियर अशरफ की फाइल्स आपने लाजमी करनी है, सोशल सिक्योरिटी का फोल्डर लाजमी करना है। केस नंबर 9, ये आसान केस था, अच्छा केस था, लेकिन वही बात है कि फिर इसमें आपने अगर एक फाइंडिंग पकड़ ली है उसकी कॉज भी उधर ही ढूंढ के उधर ही बता देंगे। ठीक हो गया? यस, बिल्कुल अपर लोब में ही होते हैं सार्कोइड और कोल्ड वर्कर्स और इस तरह से, लेकिन पैटर्न ये वाला इन तीनों में ही आता है। ठीक है, तो फिर अब आप खुद ही, जब मैं इफ वाली स्टोरी कर रही हूँ तो आप यही कहेंगे कि सर वो तो अपर लोब में ज्यादा होते हैं, तो फिर मेरे पास अब जो डिफरेंशियल बचा है ना वो लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस बचा है, तो प्लीज गिव मी हिस्ट्री ऑफ एनी प्राइमरी मेलिग्नेंसी। ठीक है, तो फिर वो खुश होकर तालियां जाएगा एग्जामिनर होगा, वाह भाई वाह, आपने तो क्या जबरदस्त अटेम्प्ट कर दिया। अब ये पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन थी, सबको नजर आ रही थी। ठीक है, इसमें अब पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन क्यों है, क्या वजह है? हमारे मुंह से निकलता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, वो भी वजह है, और क्या वजह है? ये इसमें ना जो है डिफरेंशियल्स की बुक में जो मुझसे इनसे नाम ही निकल गया है, उसके अंदर इसकी कॉजेज लिखी हुई है। एक कोई यूरीमिया है उसकी वजह से हो जाता है, टीबी है उसकी वजह से हो जाता है, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस तो सबको याद है। तो फिर इस वाले केस में देखिए, जो राइट लंग है ना उसमें मतलब क्रॉनिक ट्यूबरकुलस चेंजेस आ रही हैं, कोई एक्टिव फोकस नहीं है लेकिन ये बैंड्स आ रहे हैं, क्रॉनिक चेंजेस है, खिंचा खिंचा से थोड़ा लंग है। तो पाकिस्तान में टीबी होता है, तो इसलिए हम ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस कह के इस केस को खत्म कर देंगे, और ताकि उसको कोई और सवाल करने का मौका ना मिले। सवाल कोई है तो प्लीज पूछे, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलेंगे। और आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी जो लोग अभी तक जिन्होंने वॉलंटियर नहीं किया और नहीं बोले हैं वो प्लीज मुझे इनबॉक्स करें और बताएं कि हम बोलना चाहते हैं मैडम, और इंशाल्लाह आप लोगों की बारी भी आएगी और फिर आप लोग जब बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।